Hello everyone, you are watching the India Reads. As you know that in our previous lecture we have done the chapter number 3rd of history of class 7th NCERT, and it is the Delhi Sultans. In part 1 we have discussed about the importance of history regarding the Sultanate of Delhi, about the Delhi Sultans, okay, and the sources that give us the detailed information about the Delhi Sultanates, as well as the mosques that has been built during this period. And today we are going to start from the great dynasty. Before that there was the beginning from the Tomras Rajputs, and after that Chauhans, and we are going to discuss today from the main point, that is the Mamluk dynasty or slave dynasty or early Turkish dynasty. Okay, so remember this is of history. Class 7 NCERT, and remember that this is part 2, and the chapter name is, this is the third chapter, chapter number 3rd, the Delhi Sultans. So we'll start from the slave dynasty. So firstly we will know about the meaning of dynasty here. Dynasty. The ruling process of the same family members one after another is known as dynasty. जब ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही परिवार के मेंबर एक के बाद दूसरा शासन करता है, तो वी कैन से दैट दिस इज द डायनेस्टी लाइक अ स्लेव डायनेस्टी. And after we discuss that, what is the meaning of slave? Slave. Slave is the very important term during the Delhi Sultanate under slave dynasty. The Sultan keeps some loyal persons as their slaves, who were faithful towards the Sultan and fulfill his needs. Sultan could trust and rely on them. तो स्लेव जो है गुलाम वंश का उस समय, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहेंगे, गुलाम वंश का जो रोल था बड़ा महत्वपूर्ण था उस समय. Slave is the very important term during this period, especially if we talk about the Delhi Sultanate under the slave dynasty. तो the Sultan keeps some loyal persons, कुछ वफादार व्यक्ति होते थे जिनको सुल्तान अपना एज
एज ए दास या गुलाम की तरह रखता था, और वो दास पूरी तरह से जो थे ईमानदार थे, सुल्तान के प्रति पूरी तरह से लॉयल थे, वफादार थे, उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे, और सुल्तान भी उन पर पूरी तरह से भरोसा जो था कर सकता था। Slave was not less than Sultan's son during this period. और इस समय में जो गुलाम था वो किसी तरह से सुल्तान के बेटे से कम नहीं था, मतलब सुल्तान के काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज था। He was very close toward the Sultan. And if we will talk about the slave dynasty, then firstly, the first ruler is Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, who ruled from 1206 to 1210. Okay, so Qutbuddin Aibak was the famous slave of Muhammad Ghori. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध स्लेव था। After that he became the great general. वो एक महान जर्नैल भी बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन में। After the war of Tarain in 1192, तो जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, इन दिस वॉर मोहम्मद गोरी डिफीटेड द दिल्ली एंड अजमेर किंग पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था एंड सेट अप और डिक्लेयर्ड Qutbuddin as the viceroy of Delhi. After the death of Muhammad Ghori in 1206, he got the title of Sultan. In this way, he became the first independent सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो मोहम्मद गोरी ने जब तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो था कुतुबुद्दीन को डिक्लेयर किया था, घोषित किया था वाइसराय दिल्ली का। आफ्टर द डेथ मोहम्मद गोरी की मौत के बाद 1206 में उसको सुल्तान का टाइटल मिला। तो इस तरह से वो दिल्ली का पहला जो था आज़ाद इंडिपेंडेंट जो था सुल्तान बन गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। Okay. And we will also study here that the Qutbuddin Aibak was a great general and a very wise man. He set up his administration when there was the very difficult situations, and this was the time when there was the no religious toleration. उसके टाइम पर स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो धार्मिक असहनशीलता की नीति थी, चारों तरफ धर्म को सहन नहीं किया जाता था, धार्मिक कट्टरता काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी।
तो ऐसे समय में डिफिकल्ट सिचुएशन में ही वर्क विद वेरी एफिशिएंट वे, उसने बड़े कुशल तरीके से जो था अपना प्रशासन जो था स्थापित किया था। ही आल्सो गेट दी मैरिज रिलेशन विद दी रिबल चीफ्स, और जो विद्रोही मुखिया थे कबीलों के या किसी स्टेट के, उसके साथ उसने विवाह संबंध स्थापित किए, सो दैट ही कुड बी एबल टू कंसोलिडेट हिज पावर, ताकि वो अपनी शक्ति को जो है मजबूत कर सके। बट हिज किंगडम वाज नॉट अ लॉन्ग रन, उसका शासन ज़्यादा लंबे समय नहीं चल सका, बिकॉज ही डाइड इन 1210 आफ्टर फेल फ्रॉम दी हॉर्स, एक घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से जमीन पे नीचे गिरने के कारण 1210 में उसकी जो थी मौत हो गई। ओके, बट दी there was the magnificent thing, there was the excellent thing that he have done during this region, that was he built the large tower, Qutub Minar in Delhi, as well as 2 mosques, Fath Islam in Delhi, and अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। UNESCO declared Qutub Minar the World Heritage Site also। तो उसने जो अच्छे काम, बड़े ऐतिहासिक काम किए, उनमें से उसने जो टावर और एक लंबाई में जो उसने मीनार बनवाया, दैट इज कुतुब मीनार, दैट इज़ वेरी फेमस इन दिल्ली, एज वेल एज 2 मॉस्क्स, 2 मस्जिद उसने बनवाई थी, क़ुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूनेस्को जो कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ आल्सो डिक्लेयर्ड कुतुब मीनार एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको संसार की जो विरासत की एक जगह घोषित किया है यूनेस्को द्वारा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट रूलर, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1210 to 1236। After the death of Qutbuddin Aibak, after the death of Qutbuddin Aibak, his son Aram Shah became the Sultan। तो कुतुबुद्दीन की ऐबक के बाद की मौत के बाद उसका बेटा आराम शाह जो था वो राजगद्दी पर बैठा और सुल्तान बना, बट ही वाज
inefficient and replaced by the nobles to Iltutmish, who had been who had been the slave of Qutbuddin Aibak, and later became the son-in-law of him. तो आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था वो इतना कुशल प्रशासक नहीं था, जिसके कारण उसको रिप्लेस कर दिया गया। जो ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर में थे, नोबल्स थे, उन्होंने उसको उसकी अकुशलता के कारण राजगद्दी से उसको हटाया और उसकी जगह पर इल्तुतमिश को बैठाया। तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था और बाद में वो उसका सन इन लॉ, उसका जवाई भी बन गया था। एंड ही वाज अ वेरी we can say that an efficient ruler. He controlled the administration in a very magnificent way. अपने प्रशासन को बड़े बढ़िया ढंग से उसने कवर किया था। However, there was the revolt from the nobles and the governors of Bengal and Awadh, but he tackled the situations very well. He also tackled the Mongols also at that time, who were often raided in this region. और उन्होंने ना सिर्फ प्रशासन को सही ढंग से स्थापित किया, विद्रोहों को दबाया, बल्कि जो खूंखार प्रजाति मंगोल थी उनसे भी काफ़ी हद तक उन्होंने जो था सिचुएशन को टैकल कर लिया था। स्पेशली ही डिड नॉट परमिट हिज दी ग्रेटेस्ट एनिमी मंगोल लीडर चंगेज़ खान ड्यूरिंग हिज रीजन। तो अपने राज्यकाल में उसने चंगेज़ खान को अपने दिल्ली सल्तनत शासन में घुसने की किसी तरह से उसको अपॉर्चुनिटी या मौका जो था नहीं दिया था। ओके, एंड he also completed the Qutub Minar that has been started by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन उसको कंप्लीट जो था इल्तुतमिश ने करवाया। ओके, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द इल्तुतमिश विल स्टडी द नेक्स्ट रूलर रजिया सुल्तान। So here we can say that this is the only lady of history who got the title of Sultan. According to Minatu Siraj, the historian, as well as chronicler, she was the most efficient and able than her brothers. So she became the ruler of Delhi Sultanate. तो इतिहास में एक ही ये लेडी, एक ऐसी औरत मानी जाती है जिन्होंने सुल्तान का टाइटल, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अकॉर्डिंग टू मीनाटू सिराज जो उस समय के इतिहासकार हैं, एज वेल एज दी क्रॉनिकलर, शी वाज द मोस्ट एफिशिएंट एंड एबल। तो उस समय की सबसे ज़्यादा कुशल
और योग्य कैंडिडेट थी कंपैरिजन टू हर ब्रदर्स। अगर उसके भाइयों से उसकी तुलना की जाए तो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, वाइज थी, क्वालिफाइड थी। सो शी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। Okay, and when she became the ruler, there were so many revolt against her. Like the nobles were also opposed due to that. They were not wanted to accept the lady as a ruler in the male-dominating society. तो एक पुरुष प्रधान समाज में एक औरत को सुल्तान की उपाधि मिलना उन लोगों को गवारा नहीं था। She was known as रज़िया बेगम and later known as रज़िया सुल्तान। पहले उसका नाम रज़िया बेगम था, लेकिन जब उसको सुल्तान का टाइटल मिल गया, गद्दी मिल गई, तो उसका नाम रज़िया सुल्तान पड़ गया था। And she was very wise and efficient. She has adopted so many good policies so that she was able to crush all the revolts one by one. एक एक करके उसने सारे विद्रोह जो थे कुचल दिए थे। But the wrong thing was that her fondness towards the Yaqut, one of his slave, So due to the lot of affection and fondness toward the one of the her slave Yaqut, that destroyed her totally, and everybody became indifferent to her, and she was removed from the throne in 1240. तो एक उसका जो दास था जिसका नाम याकूत था, उसके प्रेम संबंध में पड़ जाने के कारण या फिर उसके साथ ज़्यादा लगाव होने के कारण जो कि नोबल्स थे उसके खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ विद्रोह हो गए और 1240 में उसको जो तख्त से उतार दिया गया। ओके, and after that for the long time there was not any able ruler in the slave dynasty, but at last there came the greatest ruler who was known as the greatest ruler of slaves dynasty. It was Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban's original name was Bahuri. He was the earlier slave of Iltutmish. तो यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे गियासुद्दीन बलबन जो था उसका असल नाम जो था, ओरिजिनल नेम उसका बहुद्दीन था। ही वाज द अर्लियर स्लेव ऑफ द इल्तुतमिश, और वो इल्तुतमिश का जो था प्राचीन समय में उसका एक गुलाम रह चुका था, एज वेल एज द मेंबर ऑफ 40 चहलगाम। इसके अलावा जो उस समय गुलाम्स की एक संस्था बनी हुई थी जिसको 40 या चहलगाम कहते थे, उसका भी वो मेंबर रह चुका था। एंड आफ्टर दैट इन 1266 ही बिकेम द सुल्तान। ही गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो दिल्ली का सुल्तान जो था गियासुद्दीन बलबन बन चुका था। एंड व्हेन ही बिकेम द सुल्तान देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज इन हिज वेज, देयर वर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑन दी वे। उसके रास्ते में कई रुकावटें थी, कई मुश्किलें थी, बट वन बाय वन ही टैकल ऑल द सिचुएशन वेरी सक्सेसफुल।
उसने हर मुसीबत का हल बड़े अच्छे तरीके के साथ किया। ही सेट अप हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वेरी एफिशिएंट वे। ही सेट अप द आर्मी। ही कंस्ट्रक्टेड सो मैनी forts as well as gardens and set up the justice system, judiciary system in a very magnificent way। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को काफ़ी बढ़िया ढंग से उसने जो था स्थापित किया था। Because he was also was the one of the ex-member of 40 Chalgan, so he also know about how to control these 40 and Chalgan who can attack or who can रिवोल्ट एनी टाइम अगेंस्ट हिम। तो चहलगान और 40 को कैसे कंट्रोल करना है इस पर भी उसका पूरा प्रभाव था। एंड ही वाज हार्ड वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द मंगोल्स बिकॉज दे वर ऑफन रेडेड ड्यूरिंग द दिल्ली पीरियड एंड सुल्तान्स वर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो मंगोल जाति के प्रजाति के कबीला था, कुम्हार जाति, जो अक्सर ही अचानक छापेमारी करते थे, रेड कर देते थे। तो ही अडॉप्टेड सो मैनी पॉलिसीज एंड हार्ड पॉलिसीज। उसने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज अडॉप्ट की थी उस समय, काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो थी, और उसके कारण ये उसकी पॉलिसीज़ के कारण जो था इस हार्ड पॉलिसीज़ के कारण ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। वो बहुत हद तक जो था सफल हो चुका था दैट टू टैकल दी मंगोल्स के साथ निपटारा करने में। बट स्टिल देयर वाज दी एक्सपीडिशन एंड डेंजर ऑफ दी मंगोल्स। लेकिन अभी तक मंगोल्स का जो खतरा था वो पूरी तरह से टला नहीं था, बरकरार था। दे ऑल्सो री अटैक एंड एक्सपीडिटेड ऑन द दिल्ली सल्तनत एंड इन दिस Prince Muhammad, that he was died from the hand of the Mongols, as well as the great poet Amir Khusro was captured. And in this way, this was the great shock. The death of Prince Muhammad from the hands of the Mongol was the greatest shock from the side of for the Balban, and soon after he died in 1286। और अपने बेटे प्रिंस राजकुमार मोहम्मद की मौत के बाद जो बलबन था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक टूट चुका था। और 1286 में अगर हम बात करें तो 1286 में उसके सदमे के कारण जो था उसकी मौत हो गई। सो दिस वाज फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। एंड द नेक्स्ट दैट विल टॉक अबाउट दिस इज द खलजी डायनेस्टी। Jalaluddin Khalji was the founder of this dynasty. The famous ruler was Alauddin Khalji। तो इसका जो सबसे जो कहने की बढ़िया जो जर्नैल था वो था अलाउद्दीन खिलजी, who ruled from 1296 to 1360। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। एंड अलाउद्दीन खिलजी ही वाज अ वेरी एम्बिशियस मैन। वो बड़ा तेज इच्छाओं वाला महत्वाकांक्षी person था अलाउद्दीन खिलजी। एंड ही वाज द ग्रेट लीडर, ग्रेट जनरल एंड ग्रेट administrator। He has also adopted so many policies that were very helpful in the consolidation of his administration। अपने प्रशासन को स्थापित करने के लिए जो उसने पॉलिसीज अपनाई थी वो बहुत ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शानदार थी। फर्स्टली ही टैकल द सिचुएशन, ही
conquered the different type of regions like Gwalior, Mewar, Ranthambore, Gujarat, etc. And after that, he also wanted to capture the south region. Okay, because the south was a very fertile region and the full of resources and full of wealth, and he wanted to take the advantage of these resources and wealth for the smooth running of his administration. अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए उसको इन साधनों की, इस पैसे की जरूरत थी. So he turned to the now south region. So he was also famous. He was the first ruler and famous for the Deccan Wars. तो वो एक पहला ऐसा शासक था जिसने, और प्रसिद्ध था, जिसने डेक्कन मीन्स द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया और द साउथर्न रीजन, जिसने दक्षिणी भारत के जो रीजन थे उस पर लगातार अपने युद्ध लड़े और अपना प्रभाव जो वहाँ पर स्थापित किया. His first expedition was under the General Malik Kafur. The Deccan, and he captured many regions. और इस तरह से उसने दक्षिण में जो युद्ध किए थे, और उसका जो पहली उसने नीति अपनाई थी अटैक की, उसने अपने जो उसका महान जर्नैल था जो मलिक कफूर, उसकी लीडरशिप में दक्षिण में अब उसको भेजा था वहाँ पर कूच करने के लिए, जिसने कई इलाकों पर जो था उस समय अपना प्रभाव बना लिया था, अपनी प्रभुता जो थी स्थापित कर ली थी. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द तुगलक डायनेस्टी. Tughlaq dynasty. Tughlaq Vansh. So the Tughlaq dynasty, that is started from the Jasuddin Tughlaq. Who ruled from 1320 to 1324. He was the founder of the Tughlaq dynasty and the son of Turkish Balban. His mother was from Jats. तो ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसको मौका मिला था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक डायनेस्टी की, सन ऑफ द तुर्किश बलबन, जो कि बलबन का बेटा था, और हिज मदर वाज फ्रॉम जैट्स, उसकी माँ जाट जाति से संबंध रखती थी. एंड व्हेन ही बिकेम द रूलर ही डिड सो मैनी रिफॉर्म्स, उसने काफ़ी ज़्यादा जो थे सुधार किए थे, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम एज द जीनियस एंड अ काइंड रूलर अमंग द पब्लिक और ऑडियंस. वो जनता के बीच में एक उदारवादी या एक दयालु नेता के रूप में या राजा के रूप में सामने आना चाह रहा था. तो ही डिड सो मैनी रिफॉर्म्स, उसने काफ़ी ज़्यादा उस समय सुधार किए थे. ही आल्सो हेल्प द पीसेंट्स, ही कंस्ट्रक्टेड मैनी फोर्ट्स, गार्डन्स, कई उसने किले बनवाए, गार्डन बनवाए,
He encouraged the agriculture. He encouraged the source of irrigation, सिंचाई के साधनों को उसने उत्साहित किया था. In this way, there was a great contribution in this administration of the Ghiyasuddin Tughlaq. Okay. He also sent his son, that was known as Juna Khan. He also sent his son Juna Khan in south for the expedition and crushing the revolts. तो विद्रोहों को दबाने के लिए उसने अपने बेटे प्रिंस राजकुमार जो था जूना खान, उसको भेजा था दक्षिण की तरफ, ताकि वो कुछ विद्रोहों को दबा सके और कुछ कूच की नीति जो है आगे विस्तार के लिए अपना सके. एंड प्रिंस जूना खान constructed the pavilion for the welcome of his father. तो प्रिंस राजकुमार जूना खान ने एक पवेलियन का निर्माण कराया था अपने पिता के वेलकम स्वागत के लिए, उसकी जीत के बाद जश्न मनाने के लिए. बट देयर वाज द रॉन्ग थिंग हैपेंड. अनलकीली द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स फेल डाउन on the Sultan and his other brother with the name Mahmud, Prince Mahmud, and both died in 1324. और सुल्तान जो था, इस इमारत के गिरने के कारण सुल्तान और उसका बेटा जिसको राजकुमार महमूद कहते थे, उनकी मौत हो गई in 1324. And after that Muhammad bin Tughlaq Prince Juna Khan got the name of Muhammad bin Tughlaq and became the Sultan. तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1324 से 51 तक जो था शासन किया था, प्रिंस जूना खान गोड द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था प्रिंस जूना खान, उसका ही आगे जाके नेम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया और वो सुल्तान बन गया था, जिसने 1324 से 51 तक शासन किया था. However, Muhammad bin Tughlaq was a very wise scholar and qualified person, but in spite of this, his region was known as the mixture of opposites. लेकिन उसका शासनकाल विद्रोह से भरा रहा है, लोग उसके खिलाफ रहे थे. The reason behind that were due to his wrong projects and wrong policies, and due to his failures and intolerance policies. कुछ जो उसने अडॉप्ट किए थे प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से गलत साबित हुए, असफल साबित हुए, जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसको जो है फुलिश स्कॉलर भी कहा जाता है, तो मूर्ख विद्वान भी कहा जाता है, एंड आल्सो नोन एज द मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, जो उसके खिलाफ थे. उसका जो राज्यकाल था मिला जुला खिलाफत के कारण हम कह सकते हैं. So what the policies he adopted during the region, that we will study. Projects or policies.
revenues record. The first amendment that he has made, it was however a very good thing that he adopted. ये काम जो उसने किया था शायद शासनकाल के लिए काफ़ी अच्छा था. And what he has done, we will read here the revenue report. First of all, there was no record to Sultan that whatever revenue they are taking and what is the expenditure of the administration. सुल्तान को क्या टैक्स आ रहा है और क्या उसका खर्चा, उसके बारे में सुल्तान को पहले जानकारी नहीं थी. But when Muhammad bin Tughlaq became the Sultan, he set up a register work that he just set up the record to make. He asked the authorities to make the records that tell him that what type of revenue and how much revenue they are taking, कि कितना revenue का टैक्स जो है वो लोग ले रहे हैं, कितना लगान वो ले रहे हैं भूमि का, ओके, एंड व्हाट वाज देयर एक्सपेंडिचर, और उनका खर्च क्या था. इन दिस वे ही गेट नॉलेज अबाउट दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इस तरह से उसको अपने शासन के समय में अपनी आमदन और खर्च का ब्यौरा मिल सकता है. इट वाज क्वाइट गुड थिंग दैट ही हैव डन. एंड आफ्टर दैट increasing of tax in Ganga Yamuna Doab. First we will clear the point of Doab. तो उसने जो टैक्स बढ़ा दिया था गंगा यमुना दोआब में. दोआब क्या है? दो प्लस आप, दो मीन्स टू, ab means water, means the land between the two rivers or water bodies is known as doab. The fertile land, जो उपजाऊ जमीन है, जो दो नदियों, जो वाटर बॉडीज है उनके बीच की जगह है, जमीन है, उसको हम दोआब कहते हैं. And he increased the taxes in the Ganga Yamuna Doab, but at that time there was the famine in this region. So peasants were fed up and they just fled away from their homes and set up in the jungles or forest because they wanted to get rid from these high and large taxes. इन बड़े टैक्सेस के बचने के लिए किसान लोग जो थे उनको बेघर होना पड़ा. दे हैव टू बिकम होमलेस. अपने घर छोड़ उनको जंगलों में जाना पड़ा था, ठीक है, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जो सुल्तान था उसने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया था और उस समय लगातार काल पड़ने के कारण जो थे किसान इस टैक्स पे करने के लिए लायबल बिल्कुल नहीं थे. एंड लेटर द सुल्तान लाइक इज मिस्टेक. सुल्तान को अपनी गलती का एहसास तो हुआ बाद में, बट इट वॉज टू लेट. लेकिन उस समय तक काफ़ी ज़्यादा जो था देरी हो चुकी थी. पीपल गेट ऑपोजिट हिम. लोग उसके जो थे खिलाफ हो चुके थे. आफ्टर दैट उसने क्या किया था? He shifted his capital from Delhi to दौलताबाद. तो अपनी राजधानी को ही उसने चेंज कर दिया था. दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी उसने बना दी थी. Actually he has done this because he was very sure that if he will do this thing he can also capture the another region as well as he can get away or get rid from the of attacks of Mongols. मंगोलों के अटैक से बचने के लिए शायद उसको लगा था कि दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी का स्थापित कर ली जाए तो एक बढ़िया कदम रहेगा. इट कैन बी बेटर इफ विल टॉक अबाउट ओनली द ऑफिशियल मेंबर्स, बट देयर वाज द स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट the people have to move from their belongings from Delhi to Daulatabad, and the order was so strict that not even a dog or cat left behind in Delhi. ये इतना सख्त ऑर्डर था सुल्तान का कि कोई बिल्ली या कुत्ता तक लोगों ने वहाँ नहीं छोड़ा और दिल्ली से कूच करके सभी दौलताबाद चले गए थे. एंड एट दैट टाइम मैनी ऑफ द पीपल वर डाइड ऑन द वे. बहुत सारे लोग लंबा रास्ता तय करते करते रास्ते में ही मर गए. And the people who reached there in the Daulatabad, they could not live there, they could not set up themselves there. वो अपने आप को वहाँ स्थापित सक्रिय रूप से नहीं कर सके.
and after that the sultan liked that that was the big mistake, and he ordered that give the ordinance that now move back to the Delhi. But when people moved back to Delhi, it was Delhi has just lost its flourish as the capital of the administration. तो दिल्ली में वो बात नहीं रही थी, उसने जो वहाँ का प्रशासन था एज ए राजधानी के तौर पर वो अपनी जो विख्यात था उसको खो चुका था, एंड देयर वर सो मैनी रिवोल्ट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैनी ऑफ द rebellious got independent and declared themselves independent. बहुत सारे विद्रोही या कुछ मुखिया चीफ थे जिन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, और वो पूरी तरह से जो था इसके खिलाफ था. आफ्टर दैट चेंजिंग इन करेंसी, इसको आप लिख लो. Muhammad bin Tughlaq, he was a very fascinated and very attracted from the policy of the ruler of Persians as well as Chinese, who was just using the currency of paper. जो पर्शियन और चाइनीज शासक थे उस समय वो कागज़ की करेंसी को यूज़ कर रहे थे. सो देयर वाज द आइडिया इन द माइंड ऑफ द सुल्तान. सुल्तान के माइंड में एक आइडिया आया, एंड ही जस्ट ऑर्डर्ड दैट नाउ देयर विल बी अ copper coins will be used in the place of gold and silver for the legal work for the administration. So often in every house there is a mint, and people were just creating the fake copper coins because copper was very easily available and it was not that expensive, क्योंकि तांबा इतना ज़्यादा महंगा नहीं था और आम मिल जाता था. तो हर घर में एक नोट छाप बनाने की मशीन एक तरह से बन गई. हर घर पर सिक्के बनने शुरू हो गए तांबे के. लोगों ने नकली सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, विच कॉज अ ग्रेट लॉस, जिससे बहुत ज़्यादा जो था नुकसान हुआ था. एंड व्हेन सुल्तान लाइक हिज मिस्टेक, जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, he declared that and now all the copper coins should be deposited in the treasure of Tughlaq administration, and they will replace these copper coins with the gold or silvers. तो तांबे के सिक्के सभी अपने जमा करवा दें शासन में और उसके बदले चांदी और सोने के सिक्के वापस ले लें. बट ही फॉरगेट दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल थिंग. ये एक भयानक चीज़ थी फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ट्रेजर गॉट एम्प्टी ड्यू टू दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी के कारण जो खजाना था वो पूरी तरह से जो था खाली हो गया. So in this way he has done so many things which was just opposite, indifferent toward the people, and there was the revolt against him from Bengal, Bihar, Awadh, and many of the parts the people or rulers or the chiefs who declared themselves independent. There were the rebels or revolts against him. So he could not get escape from these things, and finally in 1351 he was died, and after that there was the region we will talk about, that was the Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq from 1351 to 1358. Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was the cousin of Muhammad bin Tughlaq, and after the death of Muhammad bin Tughlaq, he became the Sultan of Delhi Sultanate. That was Firoz Shah Tughlaq. Because when he became the Sultan, he wanted to be the example of generosity and kindness. So he wanted to adopt the policy of politeness toward the audience or people. लोगों के प्रति वो उदारवादी नीति अपनाना चाहता था,
और लोगों को एक अपनी जागरूकता प्रकट करना चाहता था. So he did many of the reforms. He also encouraged the peasants. He encouraged the agriculture because he know that at that time, due to the wrong policies of Muhammad bin Tughlaq, there were many hardships and difficulty in the regions and people were against the administration. So he wanted to tackle these situations. तो इस सिचुएशन का वो हल करना चाहता था. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गलत नीतियाँ अपनाई थी. He declared that the loan that have been passed by the previous Sultan Muhammad bin Tughlaq that will be reduced, उसको खत्म किया गया. And he also ordered to the official that there should not be any type of harassment of the farmers or peasants. किसानों का कोई शोषण किसी तरह का ना किया जाए. He also fixed the revenue that was 1/10 of total produce. तो जितनी उपज होती थी उसका 10वां हिस्सा जो था लगान के रूप में लिया जाता था. That was fixed. And when there were the defaulters, they were also treated with generosity. जो defaulters थे उनका साथ भी सलूक अच्छे से किया जाता था. And there was prosperity everywhere. चारों तरफ खुशहाली थी. So in this way he tackled the situations. And Firoz Shah Tughlaq, he was also a great builder. Great builder. He founded the city of Fatehpur, Firozpur, Jaunpur, etc. He also repaired and relocated the Shokan's pillar. He also repaired the कुतुब मीनार. तो वो एक बहुत बड़ा एक महान बिल्डर था. उसने जैसे कि फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे शहरों का निर्माण करवाया. उसने अशोका, सम्राट अशोक मौर्य काल के उनके जो जितने भी पिलर्स थे उनको रिपेयर कराया. ना उसने उनकी मरम्मत करवाई, उनकी रीलोकेट, उनकी स्थिति को, लोकेशन को भी चेंज किया. और जो कुतुब मीनार थी जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और उसके बाद उसको आगे विस्तार किया था इल्तुतमिश ने. आगे लास्ट पे जाकर उसकी 5वीं मंजिल और मरम्मत का काम जो था फिरोज शाह तुगलक ने कराया था. एज वेल एज ही सेट अप अ गुड आर्मी, मेंटेन जस्टिस, जुडिशरी, अच्छी सेना का प्रबंध किया, न्याय व्यवस्था का प्रबंध किया. ही वॉज आल्सो द फॉन्ड ऑफ एजुकेशन. वो शिक्षा का बहुत हितकारी था. सो दैट ही सेट अप मैनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, schools, and there was in each college has a one mosque. हर कॉलेज के साथ एक मस्जिद जो थी अटैच थी. and there were the great scholar or professor who were teaching to the students of religion, law and politics. जो विद्यार्थियों को वहाँ पर एक कुशल प्रोफेसर हुआ करते थे जो उनको कानून, राजनीति या धर्म की शिक्षा जो दिया करते थे. in this way his region was a very satisfactory there of Firoz Shah Tughlaq. But there was one thing and one caste which was totally indifferent to him, and people get against him, especially the Hindus. Actually he started the jizya tax upon Hindus. वो ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया था. दैट वाज द टैक्स दैट द ब्राह्मण्स और हिंदूज हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग टू द पिलग्रिमेज. जहाँ तीर्थ स्थानों पर वो यात्रा करने जाते थे, उन यात्राओं के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था जिसको जजिया टैक्स कहा जाता था. एंड इन दिस वे it was against the religion of the Hindu or Brahmins, so they get against him. So due to his religious policy, because
Firoz Shah Tughlaq was the Sunni Muslims, and he was not good or kind towards the uh, non-Sunnis और Hindus. जो non-Sunnis थे या Hindus थे उनके प्रति उसकी नीति जो थी वो सहनशील नहीं थी. So that's why this was the main religious cause that people get against him. And after that, the after the death of Firoz Shah Tughlaq in 1388, the dynasty was just going to be end and declined, and there was the destruction of the Tughlaq dynasty. And students, in our next part, in part 3, we will complete this chapter Delhi Sultans. Okay, until that, if you are gaining the true knowledge from our lectures, please try to like and subscribe our channel. Thank you very much.